Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Lucknow Dinesh Sharma, BJP leader, has strongly criticized Maharashtra Samajwadi Party President Abu Asim Azim's recent statement. Sharma accused Azmi of making provocative remarks and warned that such statements could fuel communal tensions. He called for responsible political discourse to maintain peace and harmony in the country. Founder President, small and tiny tea growers of Nilgiris. Good morning, everybody. Today, we have come here to the district administration to negotiate with the administration with regard to the non-payment of tea board announced price to the small tea growers. Normally, as per the High Court order, every month tea board is announcing the average price for the small tea growers. Every month it differs, especially in the month of October. The price fixed by the tea board is rupees 24 rupees and 59 paise, but we have received only 21, 22 and 23. So in average we are losing 4 rupees per kilo. So in that month, in particular that month, we have given more than 50 lakhs kilograms of tea. So if you take the average, the small tea growers are losing more than 2 crores. So we cannot survive without getting that price, which is mandatory. One thing I would like to tell is that the Inco tea factories are bottle factories. It's coming under the purview of bottle tea factories. They cannot escape from the liabilities of tea board announcement. So we have decided to, when the price is not given to us, we the small tea growers have decided not to supply green tea leaves to the Inco tea factories. Now the district administration has asked us, you please wait for 2-3 days and we will give you the remedy. See, we have reiterated our stand that if the month of October price is not given to us, it is not settled, we will not supply the green tea leaves to the industrial tea cooperative factories. This is our decision, and we hope that the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu will intervene and see that the price is given to the small tea growers at the earliest possible date. பி கணபதி குந்தா சரகத்திற்கு உட்பட்ட 8 தேயிலை தொழிற்சாலைகளினுடைய உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிறு தேயிலை விவசாயிகளுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முறையில் உங்கள் அனைவரையும் வேண்டிக் கொள்வது, மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எப்படி களப்பணி ஆற்றி மக்களுக்கு தேவையானதை அவ்வப்பொழுது செய்து கொண்டு வருகிறாரோ, அதே போல எங்கள் தேயிலை விவசாயத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் எங்களுக்கு கொடுக்கப்படாத நிலையில் உள்ள அந்த பணத்தை திரும்ப எங்களுக்கு கொடுத்து விவசாய மக்களுடைய ஆதாரத்தை பெருக்கி அவர்களையும் வாழ்வாதாரத்தை நல்ல முறையில் இருக்க முடிவெடுப்பார். I am J.B. Subramaniam, Founder President, Small and Tiny Tea Growers of Nilgiris. Good morning, everybody. Today, we have come here to the district administration to negotiate with the administration with regard to the non-payment of tea board announced price to the small tea growers. Normally, as per the High Court order, every month tea board is announcing the average price for the small tea growers. Every month it differs, especially in the month of October. The price fixed by the tea board is rupees 24 rupees and 59 paise, but we have received only 21, 22 and 23. So in average we are losing 4 rupees per kilo. So in that month, in particular that month, we have given more than 50 lakhs kilograms of tea. So if you take the average, the small tea growers are losing more than 2 crores. So we cannot survive without getting that price, which is mandatory. One thing I would like to tell is that the Inco tea factories are bottle factories. It's coming under the purview of bottle tea factories. They cannot escape from the liabilities of tea board announcement. So we have decided to,
when the price is not given to us, we the small tea growers have decided not to supply green tea leaves to the Inco tea factories. Now the district administration has asked us, you please wait for 2-3 days and we will give you the remedy. See, we have reiterated our stand that if the month of October price is not given to us, it is not settled, we will not supply the green tea leaves to the industrial tea cooperative factories. This is our decision and we hope that the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu will intervene and see that the price is given to the small tea growers at the earliest possible date. Chazan. பி கணபதி குந்தா சரகத்திற்கு உட்பட்ட 8 தேயிலை தொழிற்சாலைகளினுடைய உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிறு தேயிலை விவசாயிகளுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முறையில் உங்கள் அனைவரையும் வேண்டிக் கொள்வது, மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எப்படி களப்பணி ஆற்றி மக்களுக்கு தேவையானதை அவ்வப்பொழுது செய்து கொண்டு வருகிறாரோ அதே போல எங்கள் தேயிலை விவசாயத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் எங்களுக்கு கொடுக்கப்படாத நிலையில் உள்ள அந்த பணத்தை திரும்ப எங்களுக்கு கொடுத்து விவசாய மக்களுடைய ஆதாரத்தை பெருக்கி அவர்களையும் வாழ்வாதாரத்தை நல்ல முறையில் இருக்க முடிவெடுப்பார். I am J.B. Subramaniam, Founder President, Small and Tiny Tea Growers of of Worship Act scheduled for December 12. The act which of any religious place of worship and mandates the status quo as of 1947 has been the subject of ongoing legal and political debates. वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कार्रवाई विचाराधीन है और 12 दिसंबर सन 2024 डेट फिक्स की गई है, तो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अच्छा कदम है, क्योंकि जिस तरह से देश में मंदिर मस्जिद के सर्वे को लेकर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और वाद विवाद बढ़ता जा रहा था, तो ये देश की ताकत के, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए एक खतरा बनता जा रहा था। तो ये अच्छा कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि इस वर्शिप एक्ट सन 1991 को लेकर के सुनवाई होगी और उस पे अब दोबारा से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आगे के लिए किस तरह से काम होगा और किस तरह से इसमें सुनवाई की जाएगी निचली अदालतों में। तो अच्छा कदम है, ये बेहतर है। कांग्रेस ने जिस तरह से वर्शिप एक्ट को लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है, तो ये एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो चुका है और इस पर सुनवाई के लिए 12 दिसंबर सन 2024 डेट फिक्स की गई है। तो ये बेहतर है कि अब मामला जब माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक क्रेडिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मामला सब जुडिस है तो अभी हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि क्या स्थिति स्पष्ट होती है और क्या गाइडलाइन आगे के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से तय होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि देश का माहौल ना बिगड़े, शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, तो ज़्यादा वाद विवाद में पड़ने के बजाय बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कार्रवाई विचाराधीन है और 12 दिसंबर सन 2024 डेट फिक्स की गई है, तो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अच्छा कदम है, क्योंकि जिस तरह से देश में मंदिर मस्जिद के सर्वे को लेकर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और वाद विवाद बढ़ता जा रहा था। Waris Pathan, AIMIM leader, has criticized Milind Narvek's recent statement on the Babri Masjid demolition, calling it an attempt to distort historical facts. Pathan emphasized the need for accountability and justice for the destruction of the mosque, which remains a continuous issue in India's socio-political landscape. कि मैंने क्या ट्वीट किया है, मैंने लिखा कल 6 दिसंबर था और 6 दिसंबर 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था,
जिसको हम डेमोक्रेसी का काला दिन बोलते हैं। देश की डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन षड्यंत्र के तहत हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। अब उसके ऊपर शिवसेना उबट आके जो एमएलसी है मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और एक फोटो लगाया बाबरी का, और उन्होंने ये कहा है कि हमको गर्व है उन पर जिन्होंने बाबरी को गिरा दिया। अब मेरा सवाल ये है शिवसेना उद्धव ठाकरे से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, शरद पवार जी से कि आप तो सब महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे। मुसलमानों ने पिछले लोकसभा के वक्त, विधानसभा के वक्त भर भर के वोट दिया है। मुसलमानों ने इनको वोट लेकर जीते, इक्तदार की कुर्सी पर आकर अब बैठ गए। अब क्या ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं है? इस तरह का ट्वीट करके आप क्या दिखाना चाहते हो? मुसलमानों के वोट तो आपने लिए, और क्यों खत्म खामोश है अभी कांग्रेस, सेना? क्या इस पर राय है उद्धव ठाकरे की? क्या राय है इसके ऊपर शरद पवार साहब की? क्या राय है समाजवादी पार्टी की? तो मुसलमानों के वोट आप लेंगे, लेकिन उनकी मस्जिद को जिन्होंने शहीद कर दिया, जिन्होंने गिरा दिया, उनकी तो ताईद में खड़े हो गए। तो मेरा सवाल है, सबसे बताइए, आप क्या इस बात का खंडन करते हैं या आप इनके समर्थन में? ये भारत का मुसलमान जानना चाहता है इस बात को कि मैंने क्या ट्वीट किया है। मैंने लिखा कल 6 दिसंबर था और 6 दिसंबर 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जिसको हम डेमोक्रेसी का काला दिन बोलते हैं। देश की डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन षड्यंत्र के तहत हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। अब उसके ऊपर शिवसेना उबट आके जो एमएलसी है मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और एक फोटो लगाया बाबरी का, और उन्होंने ये कहा है कि हमको गर्व है उन पर जिन्होंने बाबरी को गिरा दिया। अब मेरा सवाल ये है शिवसेना उद्धव ठाकरे से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, शरद पवार जी से कि आप तो सब महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे। मुसलमानों ने पिछले लोकसभा के वक्त, विधानसभा के वक्त भर भर के वोट दिया है। मुसलमानों ने इनको To lead the Save the Villages and the Countryside campaign will kick off on October 13, following a decision made during a CAP Panchayati, announced Chaudhary Surendra Solanki. The initiative aims to address issues affecting rural areas and promote the preservation of villages and their traditional ways of life. देखिए, दिल्ली के अंदर किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली के 360 गांव आज बदहाली के कगार पे हैं और दिल्ली के चारों तरफ लगातार किसान दिल्ली में आना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं आने दिया जा रहा। जबकि दिल्ली के मूल निवासी, दिल्ली के जो किसान हैं या दिल्ली के जो 360 गाँव के ग्रामीण हैं, उनके हालात बद से बदतर है। वो पिछले 1.5 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 13 अक्टूबर से हमने गांव देहात बचाओ यात्रा शुरुआत की थी और लगभग अभी तक हम 300 गांव में पंचायतें कर चुके। आज पोचनपुर गांव में हमारी ये बैठक हुई और इसमें निर्णय लिया गया कि आगामी चुनाव से पहले अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी महापंचायत का ऐलान भी आज हम यहाँ से कर रहे हैं कि आने वाली 22 सितंबर को दिल्ली के 360 गांव की एक महापंचायत दिल्ली के मंगोरपुर कला गांव में रखी गई है सुबह 11 बजे, और जरूरत पड़ी तो हम देश भर से अपनी सभी खापों को भी वहां पर बुलाएंगे। उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतें भी वहां पर मौजूद रहेंगी और वहां पर कुछ कठोर निर्णय आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ लिए जाएंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से दिल्ली के वो 360 गांव जिनकी जमीनों पे दिल्ली बसी, चाहे प्रधानमंत्री का घर हो, चाहे राष्ट्रपति, चाहे मुख्यमंत्री का, आज वो बद से बदतर हालात में पहुंच चुके हैं। उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है और पिछले 1.5 साल से हम आंदोलित है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। समय समय पे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन समाधान की तरफ अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ा। तो अब की बार दिल्ली के 360 गांव ने ये निर्णय ले चुके हैं कि अगर आगामी चुनाव से पहले हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। आवाज से निकालो जी, बहने ना सुनेगी तो वो कौन सुनेगा उन्हें? अब की देखिए, दिल्ली के अंदर किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली के 360 गांव आज बदहाली के कगार पे हैं
और दिल्ली के चारों तरफ लगातार किसान दिल्ली में आना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं आने दिया जा रहा। जबकि दिल्ली के मूल निवासी, दिल्ली के जो किसान हैं या दिल्ली के जो 360 गाँव के ग्रामीण हैं, उनके हालात बद से बदतर है। वो पिछले 1.5 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 13 अक्टूबर से हमने गांव देहात बचाओ यात्रा शुरुआत की थी और लगभग अभी तक हम 300 गांव में पंचायतें कर चुके। आज पोचनपुर गांव में हमारी ये बैठक हुई और इसमें निर्णय लिया गया कि आगामी चुनाव से पहले अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी महापंचायत का ऐलान भी आज हम यहाँ से कर रहे हैं कि आने वाली 22 सितंबर को दिल्ली के 360 गांव की एक महापंचायत दिल्ली के मंगोरपुर कला गांव में रखी गई है सुबह 11 बजे, और जरूरत पड़ी तो हम देश भर से अपनी सभी खापों को भी वहां पर बुलाएंगे। उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतें भी वहां पर मौजूद रहेंगी और वहां पर कुछ कठोर निर्णय आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ लिए जाएंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से दिल्ली के वो 360 गांव जिनकी जमीनों पे दिल्ली बसी, चाहे प्रधानमंत्री का घर हो, चाहे राष्ट्रपति, चाहे मुख्यमंत्री का, आज वो बद से बदतर हालात में पहुंच चुके हैं। उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है और पिछले 1.5 साल से हम आंदोलित है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। समय समय पे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन समाधान की तरफ अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ा। तो अब की बार दिल्ली के 360 गांव ने ये निर्णय ले चुके हैं कि अगर आगामी चुनाव से पहले हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। आवाज से निकालो जी, बहने ना सुनेगी तो वो कौन सुनेगा उन्हें। अपने होके अब की देखिए, दिल्ली के अंदर किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली के 360 गांव आज बदहाली के कगार पे हैं और दिल्ली के चारों तरफ लगातार किसान दिल्ली में आना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं आने दिया जा रहा। जबकि दिल्ली के मूल निवासी, दिल्ली के जो किसान हैं या दिल्ली के जो 360 गाँव के ग्रामीण हैं, उनके हालात बद से बदतर है। वो पिछले 1.5 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 13 अक्टूबर से हमने गांव देहात बचाओ यात्रा शुरुआत की थी और लगभग अभी तक हम 300 गांव में पंचायतें कर चुके। आज पोचनपुर गांव में हमारी ये बैठक हुई और overcast consensus during a recent visit to Gaon Gwalior. He emphasized the importance of conducting a caste-based census to address social inequalities and ensure more inclusive policies for marginalized communities. ओबीसी महासभा के हमारे भाई धर्मेंद्र और विश्वजीत रतोनिया ने मुझे आमंत्रण किए और मैं पहली बार ग्वालियर की धरती पे आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्वालियर का जो इतिहास रहा है उसमें दोनों बात पढ़ने को मिलता है, लेकिन जो बातें हैं, जो जाति जनगणना की बात है, सामाजिक न्याय का बात है, प्रतिनिधित्व का सवाल है, आदिवासियों, जनजाति, महिला, दलित यानी SC/ST ओबीसी माइनॉरिटियों पर जो समस्याएं हैं उनकी समाधान और प्रतिनिधित्व का जो व्यवस्थाएं हैं, इस विषय पे चर्चा होनी है। एक मीटिंग के लिए मैं आया हूं और मुझे काफी अच्छा लगा। मीटिंग अभी चल रही है। सर, आपने जाति जनगणना की बात करी, यहाँ का विपक्ष भी है वो लगातार जाति गणना की बात कर रहा है। क्या लगता है कि नेपाल में जाति जनगणना होती है या भारत में होनी चाहिए? देखिए, जाति जनगणना बहुत जरूरी है। नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, जहां पे जात व्यवस्था से समाज में और धार्मिक व्यवस्था से जहां में असमानता ज्यादा काम हो वहां पे उनको भागीदारी और प्रतिनिधित्व और सम्मान के लिए ये जाति जनगणना जरूरी है। सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना जरूरी है। संख्या, प्रतिनिधित्व और जल, जमीन, जागीर और स्रोत साधनों से जो वंचित समाज है उनके लिए जाति गणना जरूरी है। क्या
वैज्ञानिक सिस्टम हो सकता है, यही एक वैज्ञानिक सिस्टम है, यही एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी है। कास्ट जो है, अभी ओबीसी महासभा के हमारे भाई धर्मेंद्र और विश्वजीत रतोनिया ने मुझे आमंत्रण किए और मैं पहली बार ग्वालियर की धरती पे आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्वालियर का जो इतिहास रहा है उसमें दोनों बात पढ़ने को मिलता है, लेकिन जो बातें हैं, जो जाति जनगणना की बात है, सामाजिक न्याय का बात है, प्रतिनिधित्व का सवाल है, आदिवासियों, जनजाति, महिला, दलित यानी SC/ST OBC माइनॉरिटियों पर जो समस्याएं हैं उनकी समाधान और प्रतिनिधित्व का जो व्यवस्थाएं हैं, इस विषय पे चर्चा होनी है। एक मीटिंग के लिए मैं आया हूं और मुझे काफी अच्छा लगा। मीटिंग अभी चल रही है। सर, आपने जाति जनगणना की बात करी है, यहाँ का विपक्ष भी है वो लगातार जाति गणना की बात कर रहा है। क्या लगता है कि नेपाल में जाति जनगणना होती है या भारत में होनी चाहिए? देखिए, जाति जनगणना बहुत जरूरी है। नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, जहां पे जात व्यवस्था से समाज में और धार्मिक व्यवस्था से जहां में असमानता ज्यादा काम हुआ हो, वहां पे उनको भागीदारी और प्रतिनिधित्व और सम्मान के लिए ये जाति जनगणना जरूरी है। सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना जरूरी है। संख्या, प्रतिनिधित्व और जल, जमीन, जागीर और स्रोत साधनों से जो वंचित समाज है उनके लिए जाति गणना जरूरी है। क्या वैज्ञानिक सिस्टम हो सकता है, यही एक वैज्ञानिक सिस्टम है, यही एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी है। कास्ट जो है, अभी ओबीसी महासभा के हमारे भाई धर्मेंद्र और विश्वजीत रतोनिया ने मुझे आमंत्रण किए और मैं पहली बार ग्वालियर की धरती पे आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्वालियर का जो इतिहास रहा है उसमें दोनों बात पढ़ने को मिलता है, लेकिन जो बातें हैं, जो जाति जनगणना की बात है, सामाजिक न्याय का बात है, प्रतिनिधित्व का सवाल है, आदिवासियों, जनजाति, महिला, दलित यानी SC/ST OBC माइनॉरिटियों पर जो समस्याएं हैं उनकी समाधान और प्रतिनिधित्व का जो व्यवस्थाएं हैं, इस विषय पे चर्चा होनी है। एक मीटिंग के लिए मैं आया हूं और मुझे काफी अच्छा लगा। मीटिंग अभी चल रही है। सर, जाति जनगणना की बात करी, यहाँ का विपक्ष भी है जाति गणना की बात कर रहा है। क्या लगता है कि नेपाल में जाति जनगणना होती है या भारत में होनी चाहिए? देखिए, जाति जनगणना बहुत जरूरी है। नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, जहां पे जात व्यवस्था से समाज में और धार्मिक व्यवस्था से जहां में असमानता ज्यादा काम हुआ हो। Lucknow Ravidas Mehrotra Samajwadi Party leader has responded to Maharashtra Samajwadi Party President Abu Asim Azim's controversial statement. Mehrotra expressed concern over Azim's remarks, stressing the need for unity within the party and cautioning against divisive statements that could harm its integrity and public image. समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम जी ने जो बात कही है वो महाराष्ट्र के हिसाब से सही कही होगी और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में बात आ गई है और इस संबंध में अंतिम निर्णय वो करने का काम करेंगे। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी निर्णय करेंगे और बहुत जल्दी ही उनका निर्णय सामने आएगा। ये हमारा जो भी कार्य है वो देश के लिए होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी व्यक्तिगत चीज़ नहीं होती। राजनीति में हम सिर्फ देश को ध्यान की बात करते हैं
और जब देश सुरक्षित रहेगा तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का काम करते हैं। अगर धर्म या नफरत के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सबसे पहले हमको ये विचार करना होगा कि हमारा देश एक रहे। जब देश मजबूत होगा तभी जो है वो धर्म That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CBR English.